Okay, the lanthanides, they are resembling each other. Their properties are very much similar to each other. So separation of lanthanide is a difficult job, isn't it? उनको separate करना एक मुश्किल तरीन मरहला है. Various process they are applied for the separation of lanthanides from each other. One of the important source of the lanthanides that you may be aware of that. Yes, what is the important source of lanthanides? Yes. What is the important source of lanthanide? Lanthanide का अहम source जरिए क्या है? Yes, anyone? We should prepare for that. Exams are very near. So whether exams are near or far, we should go for the preparation. We must prepare for that. We should not be exam oriented. One should be knowledge oriented. Yes, what is the important source of lanthanides? Lanthanide का अहम जरिया क्या है जहां से हमको lanthanides मिलते हैं? Yes, anyone? Monazite. Okay, very good. Who is going to answer? Yes, your name please. Sheikh Munazza. Okay, Munaza, very good. Monazite sand is the important source of lanthanide. Okay, it is a orthophosphate. Orthophosphate is that is a mixture of lanthanide orthophosphate. That is called as the, how do you call? Monazite sand. Along with lanthanide, some actinides they are also obtained from that lanthanide, from this monazite sand. But important source for lanthanide is monazite sand. So separation of lanthanides from each other or monazite sand is a difficult job. And then that can be achieved with the help of various processes we apply for that. One of the important number of methods are there. Fractional crystallization is there. Then solvent extraction is there. Solvent के अंदर हमसे extract करना. Fractional crystallization. Fractional crystallization क्या है? जैसे कि दो चीजें हैं, ठीक है? Suppose एक salt का mixture है, उसके अंदर में दो salts हैं, एक A और B, ठीक है? तो उसके अंदर में से हम देखते हैं कि किसी की solubility ज्यादा है और किसी की solubility कम है, ठीक है? तो ये प्रिंसिपल को ख्याल के अंदर में रखते, keeping into this into mind, we crystallize from that. सॉल्वेंट के अंदर में से हम वो जो जल्दी क्रिस्टलाइज होता है उसको क्रिस्टलाइज कर लेते, ठीक है? सॉल्वेंट के अंदर हम मिक्स करते हैं, ठीक है? और मिक्स करने के बाद जो पहले क्रिस्टलाइजेशन होता है दैट विल क्रिस्टलाइज आउट फर्स्ट, और जो बाद में क्रिस्टलाइज आउट होता है बाद में क्रिस्टलाइज आउट होगा. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है? तो ये समझ में आ गया आपके फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन. दो से ज्यादा कंपाउंड्स हो सकते हैं, उसमें जो पहले क्रिस्टलाइज होता है वो बाहर आ जाएगा. जब मिक्सचर के अंदर हम उसको रखेंगे, हॉट करेंगे, मिक्सचर के अंदर में मिक्सचर को कूल करेंगे, ठीक है? मिक्सचर को हॉट करेंगे, उसके बाद कूल करेंगे. कूल करने के बाद जिसका जो क्रिस्टलाइज जल्दी होता है वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा कम टेम्परेचर की, ठीक? उसको हम सेपरेट कर देंगे, ठीक है? उसको हम फिल्टर करेंगे, सेपरेट कर देंगे. अब जो कुछ बचेगा वो सेकंड रहेगा, फिर हम उसको एक बार हम उसको हॉट कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं. दिस इज हाउ फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन इज देयर, ठीक है? दूसरी मेथड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है, और तीसरी जो इफेक्टिव मेथड है, ये इफेक्टिव जो मेथड है हमारे लिए जो हमको देखना है, दैट इज आयन एक्सचेंज मेथड. बहुत इफेक्टिव मेथड है आयन एक्सचेंज मेथड, ठीक है? ये आयन एक्सचेंज मेथड के अंदर में क्या होता है, इस तरह ब्यूरेट टाइप की एक ब्यूरेट होती है, ठीक है? such type of burette is there. That burette is packed with the column which is containing resin. Resin means these are the fine particles just like mustard. What is mustard? Mustard क्या कहते हैं? mustard
Yes, mustard or smaller particles than mustard. गोल गोल पार्टिकल्स रहेंगे मस्टर्ड के जैसे, मस्टर्ड यानी राई, राई के जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स रहेंगे, that are called as resin. छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं वो इसके अंदर पैक किए हुए, ठीक है। यहाँ पर पॉलीमर भरा हुआ है इस तरह की ब्यूरेट के अंदर में, ब्यूरेट इट इज कंटेनिंग पॉलीमर, पॉलीमर नथिंग बट रेजिन, small round particles are there, these particles are packed in this burette. Okay, this is having tap just like our burette. नीचे उसके टैप रहता है जैसा हमारे ब्यूरेट के अंदर नीचे टैप होता है, ऊपर से ओपन रहती है और नीचे से टैप होता है, ठीक है। तो व्हाट इज दैट आयन एक्सचेंज मेथड? तो इफेक्टिव, दिस शुड बी केप्ट इन माइंड, दिस इज अ मेथड व्हिच इज वेरी इफेक्टिव in separation, rapid separation. Rapid means, yes, rapid Fast. fast. This is very effective and fast method for the separation of lanthanide. What is a synthetic ion exchange resin with functional groups like COH and SO3 is packed in a long column fixed with a vertical position. ठीक है, ये जो हमारा कॉलम है, वॉट एवर कॉलम इट इज देयर, इट इज पैक्ड विद द रेजिन, सिंथेटिक रेजिन, मैन मेड रेजिन. What are the contents of this resin? This resin contains two functional group, COH group which is called as carboxylic group, and another group is sulfonic acid group, SO3H group. Okay, this is the ion exchange resin column. This column is packed with the resin which is synthetic one, man made. This resin contains mainly two types of functional group. One is COH group, another is sulfonic acid group, SO3H group. Okay, so a synthetic resin is there which has functional groups like COH and SO3H group. A solution of mixture of lanthanide is allowed to flow through this column. Okay, a mixture of lanthanide is powered. यहां से हम क्या करते हैं, मिक्सचर जो सॉल्यूशन की शक्ल के अंदर में यहां से हम पावर करते हैं, POUR पावर, ठीक है, POUR नहीं है, पावर यानी निथारना जिसको बोलेंगे हम, डालना, लिक्विड को किसी इसके अंदर में निकालना. आई एम नॉट गेटिंग एग्जैक्ट उर्दू टर्मोलॉजी फॉर दैट. Okay, a solution of mixture of lanthanide is allowed to flow through this column. What happens? The lanthanide ion M3 plus, characteristic oxidation state of this lanthanide ion is 3 plus. So what does they do? This lanthanide ion replace the H plus ions from the functional groups. Which functional group are present in the resin? Yes, रेजिन में किस टाइप के फंक्शनल ग्रुप है? yes? COH, SO3H. हाँ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, SO3H ग्रुप. यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है. तो व्हाट दे डज, ये क्या करते हैं, ये लैंथेनाइड आयन क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं. What does they do? Lanthanide ion they come from the solution and travel down in the resin. रेजिन के अंदर में आते हैं और रेजिन में का जो H प्लस आयन है, ये H आयन है, इसको रिप्लेस कर देते हैं. ठीक है, ये H आयन जो है रेजिन में का, इसको रिप्लेस करने का काम वो करते हैं. ठीक है, thus resin will bind, thus this M3 plus ions cations they will bind to the resin. ये कहां पर है अब, रेजिन के अंदर में. ठीक है, रेजिन के अंदर ये बाइंड हो गए. ठीक है, ये रेजिन को यहाँ पर बाइंड हो गई, दिख रहा है आपको, रेजिन को बाइंड हो गए. ठीक है, यहाँ पर ये रेजिन को बाइंड हो गए, यहाँ पर ये है अभी. ठीक है, यहाँ पर ये SO3 आयन है,
ठीक है, यहाँ पर हमने सॉल्यूशन को डाला, अब यहाँ पर वो बाइंड हो गए। ठीक है, अब बाइंड होने के बाद क्या बचा है इसके अंदर में से H+। ठीक है, ये यहाँ पर बाइंड हो गए M रेजिन को। M मीन्स मेटल आयन, लैंथेनाइड आयन बाइंड हो गए रेजिन को, दे आर बाइंडेड, दे आर अटैच्ड टू द रेजिन। नाउ दिस H+ आयन they flows down the column and move out through the tap। टैप में से हम बाहर निकाल लेते, तब क्या बचा है H+ आयन बचे हैं। ये H+ आयन जो हमने रिप्लेस कर दिए रेजिन में से बाय मींस ऑफ दिस लैंथेनाइड आयन। ठीक है, लैंथेनाइड आयन ने रिप्लेस कर दिया है H+ आयन को, और जो H+ आयन बचे हैं दे विल कम आउट थ्रू द टैप, टैप के अंदर में से बाहर आ जाएंगे, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर रिप्लेसमेंट हो गए। ठीक है, now buffered solution of citric acid and ammonium citrate is then used for elution। ठीक है, अब लैंथेनाइड आयन कहां पर है अभी? यस, लैंथेनाइड आयन कहां पर है अभी? रेजिन। हाँ, दे आर बाइंडेड टू द रेजिन। ठीक है, रेजिन को बाइंड किए हुए, तो अब उनको निकालना जरूरी है उसके अंदर में से, उसमें से सेपरेट करना जरूरी है। अब्सॉर्ब हुए, अटैच हुए हैं रेजिन को। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, बफर सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। सिट्रिक एसिड और अमोनियम सिट्रेट ये बफर यूज करते हैं, यूज फॉर इल्यूशन। इल्यूशन उसमें से रिमूव करना, रेजिन को जो अटैच हुए हैं उसमें से निकालना, इसको इल्यूशन भी कहते हैं, या कुछ बुक्स के अंदर में लीचिंग भी कहा जाता है, लीचिंग ऑफ द कॉलम। वो कॉलम के अंदर में जो फिक्स हुए हैं उसके अंदर में से हमको सेपरेट करना है। ये सेपरेट करने के लिए हम बफर का इस्तेमाल करते हैं, नेम्ड एज सिट्रिक एसिड एंड अमोनियम सिट्रेट। ठीक है, क्या होता है, as the citrate solution moves down, comes down, the lanthanide ions in the resin come out and they form the citrate complex। ठीक है, ये M resin 3 है। ठीक है, ये अटैच हुआ है, M3 आयन हमारे लैंथेनाइड आयन जो रेजिन को अटैच हुए हैं। अब ऊपर से हम क्या डाल रही है, सिट्रिक एसिड अमोनियम सिट्रेट का सॉल्यूशन डाल रहे हैं, जो हमारा बफर सॉल्यूशन। ठीक है, क्यों डाल रहे हो, व्हाट इज द रोल ऑफ दैट? रोल क्या है बफर का? यस, हेलो, व्हाट इज द रोल ऑफ दैट बफर? हेलो, फॉर इल्यूशन। हाँ, इल्यूशन और लीचिंग ऑफ द कॉलम। ठीक है, इल्यूशन यू हैव टू रिमूव फ्रॉम द कॉलम, कॉलम के अंदर में से अब हमको लैंथेनाइड आयन जो है सेपरेट करना है। ठीक है, ये हमारा बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन ऊपर से डाल रहे हैं, तो क्या होता है, लैंथेनाइड आयन इन द रेजिन कम आउट एंड दे फॉर्म द सिट्रेट कॉम्प्लेक्स। वो क्या करते हैं, सिट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाए। ये सिट्रेट दिख रहा है आपको, M3+ आयन और सिट्रेट, सिट्रिक एसिड को ये कंबाइन हो गया, ज्वाइन हो गया, अटैच हो गया, सिट्रेट कॉम्प्लेक्स इस तरह से फॉर्म हो गए। ये रेजिन एज इट इज रह गया, 3H रेजिन। ठीक है, एज द सिट्रेट कॉम्प्लेक्स ट्रेवल्स डाउन, जैसे ये सिट्रेट कॉम्प्लेक्स नीचे आता है, M3 आयन इज रिकैप्चर्ड बाय द रेजिन। ठीक है, M3 आयन जो हमारा लैंथेनाइड आयन फिर एक बार रिकैप्चर होता है, किससे रिकैप्चर होता है, ये रेजिन से। रेजिन फिर एक बार उसको रिकैप्चर कर लेता है। ठीक है, as more eluting solution comes down, M3 आयन अगेन कम्स ऑफ द रेजिन। इसको करने के लिए हम अब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से एक बार इल्यूटिंग सॉल्यूशन और ये बफर सॉल्यूशन डालेंगे। ठीक है, रिकैप्चर कर लिया इसने, रेजिन ने लैंथेनाइड आयन को, जो बाहर निकल गया था, इल्यूट आउट हो गया था इस सिट्रिक एसिड डालने के बाद कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होकर। ठीक है, तो फिर से हमको क्या करना है, मोर इल्यूटिंग सॉल्यूशन डालना है। इल्यूटिंग सॉल्यूशन कौन सा है, सिट्रिक एसिड और अमोनियम सिट्रेट ये डालना है। तो क्या हो जाएगा, एज मोर इल्यूटिंग सॉल्यूशन कम्स डाउन, M3 आयन अगेन कम्स ऑफ द रेजिन। आ रहा है समझ में? वो रेजिन के अंदर में से फिर बाहर निकल जाएगा, जैसे जैसे हम उसकी मिकदार बढ़ाते चले जाएंगे। फिर एक बार हम हमारा सिट्रेट, ये जो बफर सॉल्यूशन है ये ऊपर से डालेंगे, डालने के बाद क्या हो जाएंगे, वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ कमिंग ऑफ एंड गेटिंग रिकैप्चर्ड कंटिन्यूड थ्रू आउट देयर जर्नी इन द वर्टिकल कॉलम। ये प्रोसेस रिपीट होती रहती है। ठीक है, उसके अंदर में से निकलने के लिए हम हमारा कॉम्प्लेक्स डालेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स डालने के बाद फिर उसके अंदर में से रिकैप्चर हो जाएंगे, रेजिन के ऊपर अटैच हो जाएंगे। फिर एक बार हम थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट ऑफ ये हमारा सिट्रिक एसिड अमोनियम सिट्रेट सॉल्यूशन डालेंगे, और फिर लास्ट के अंदर में बाहर निकल जाएंगे।
the smaller lanthanide ions like lutetium they form stronger complexes with citrate ions. तो छोटे आयंस है लैंथेनाइड सीरीज में, छोटे आयंस कौन से, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो लैंथेनम से ल्यूटेशियम की तरफ जब हम जाते हैं तो एटॉमिक साइज, आयनिक साइज, इट गोज ऑन डिक्रीजिंग, दैट इज कॉल्ड एज द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ल्यूटेशियम 3+ ये सबसे छोटा साइज है, तो ये क्या करता है, स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है विद सिट्रेट आयंस देन लार्जर वंस। लैंथेनम कहाँ है, पहले शुरुआत से हम लैंथेनम ले रहे हैं, तो लैंथेनम से ल्यूटेशियम की तरफ जब हम जा रहे हैं तो साइज इट ग्रेजुअली डिक्रीजेस, दिस इज कॉल्ड एज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इसलिए लैंथेनम सबसे बड़ा साइज में है और ल्यूटेशियम सबसे छोटा है, इसलिए ये क्या करता है, स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है सिट्रेट आयन के साथ। ठीक है, द स्मॉलर एंड हेवियर आयंस देयरफॉर दे स्पेंड मोर टाइम इन सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं मूविंग डाउन करने के लिए, देन रिमेनिंग इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स इन द रेजिन सॉल्यूशन। ठीक है, जो स्मॉलर आयंस है और हेवियर आयंस है वो सॉल्यूशन के अंदर में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं इन सॉल्यूशन, मूविंग डाउन नीचे आने के लिए, देन रिमेनिंग इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स इन द रेजिन कॉलम। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर में इनका ज्यादा टाइम जाएगा जो छोटे स्मॉलर कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, द हेवियर आयंस सच एज लूटेशियम 3+ आर देयरफॉर इल्यूटेड फ्रॉम द कॉलम फर्स्ट, इसलिए ल्यूटेशियम के जैसे आयंस ये सबसे पहले कॉलम से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, और इंडिविजुअल आयंस जो है अलग अलग हम बाद में सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, आज की मीटिंग के अंदर बस इतना ही हमको कवर करना है। ठीक है, आयन एक्सचेंज मेथड, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, किस तरह से ऑपरेट होती है, प्रोसेस क्या है। ठीक है, ये हमारा कॉलम है, ब्यूरेट होती है इसमें, वर्टिकल कॉलम ब्यूरेट की तरह, इसमें रेजिन भरा होता है। ठीक है, सिंथेटिक रेजिन है, उसमें COH और SO3H एंड सल्फोनिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड आयन है, ऊपर से हम सॉल्यूशन ऐड करते हैं। ठीक है, उसमें के लैंथेनाइड आयन रिप्लेस होते हैं, H+ आयन रिप्लेस होकर के कहाँ पर अटैच होते हैं, कॉलम को। ठीक है, कॉलम में से इल्यूट करने के लिए, निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर से सॉल्यूशन डालते हैं, सिट्रिक एसिड, अमोनियम सिट्रेट। ठीक है, यहाँ पर ये बाइंड हो रहा है रेजिन को, रेजिन से बाइंड हो गया, उसके बाद टैप में से क्या निकलता है, H+ आयन। ठीक है, फिर ये जो अटैचमेंट हुआ है इसको रिमूव करने के लिए, इल्यूशन करने के लिए, लीचिंग ऑफ द कॉलम करने के लिए हम सिट्रिक एसिड और अमोनियम सिट्रेट का बफर यूज करते हैं। वो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है किसके साथ में, M3+ लैंथेनाइड आयन के साथ में। ठीक है, ये नीचे आता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नीचे आता है। ठीक है, ए मोर इल्यूटेड सॉल्यूशन और डबल से रिकैप्चर होता है। ठीक है, एज द सिट्रेट कॉम्प्लेक्स ट्रेवल डाउन, जैसे जैसे नीचे आता है तो M3+ आयन जो लैंथेनाइड आयन थे रिकैप्चर हो जाते हैं बाय द रेजिन। ठीक है, अब उसको निकालने के लिए, इल्यूशन के लिए, फिर एक बार हम ज्यादा अमाउंट पे, मोर अमाउंट के अंदर में ऊपर से हमारा बफर सॉल्यूशन सिट्रिक एसिड, अमोनियम सिट्रेट सॉल्यूशन ऐड करते हैं, तो M3 आयंस अगेन कम्स ऑफ द रेजिन, तो रेजिन में से बाहर निकल जाता है। ये प्रोसेस रिपीट होती रहती है थ्रू आउट द जर्नी, कॉलम के अंदर में जो जर्नी होता है इसमें प्रोसेस रिपीट होती है। तो स्मॉलर लैंथेनाइड आयन जो होते हैं स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं सिट्रेट आयन के साथ में एज कम्पेयर टू लार्जर वंस। द स्मॉलर एंड हेवियर आयंस देयरफॉर दे स्पेंड मोर टाइम इन सॉल्यूशन, मूविंग डाउन, देन रिमेनिंग इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स की शक्ल में कम रहते हैं और सॉल्यूशन के अंदर में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होता है, द हेवियर आयंस लाइक Lu3+ दे आर देयरफॉर इल्यूटेड फ्रॉम द कॉलम फर्स्ट, सबसे पहले वो कॉलम से बाहर निकल आते हैं। ठीक है, इसके बाद जो इंडिविजुअल आयंस है हम दूसरे प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। ओके, इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी यू मे आस्क। Whatever home assignment it is given through small questions, you should go for that, आप उसको सॉल्व करते चलिए, बस इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में आएंगे।
ठीक है। जो कुछ आपको क्वेश्चन दिए, बहुत सारे कल मैंने 4-5 क्वेश्चन डाले हैं आपको, तो दो आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द exam point of view, from the knowledge point of view, so you should try to solve them. आप उसको solve करने की कोशिश कीजिए। late in the night I have also sent the PPT for the yesterday's lecture. कल का जो लेक्चर हुआ है उसकी PPT भी मैंने करेक्ट करके आपको भेज दी, ठीक है। you go for that. So all the soft material, nearly almost all the notes are available with you. So you should go for this study. If you have a difficulty, you keep in the mind, you put on the paper and ask me later on the period, or you may ask on WhatsApp. It doesn't matter much. If you are going to study, अगर आप पढ़ रहे हैं तो definitely you will have some problem. पढ़ रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम आएंगे, जो नहीं पढ़ रहा है he will not get any problem. प्रॉब्लम आ रहा है इसका मतलब ही ये है कि आप स्टडी कर रहे हैं। जो देखिए, जो गाड़ी चलती है उसी के अंदर में बिगाड़ आता है, उसी को प्रॉब्लम आते हैं, ठोकरें उन्हीं को लगती है जो चलते हैं, तो बैठे हुए जगह पर उनको क्या ठोकर लगेगी, ठीक है। एग्जाम करीब है लेकिन उसका आप टेंशन मत लीजिए, ठीक। आपके बस में जो है, हम आखिरी दम तक आप लोगों के साथ में बने हुए हैं। जो भी प्रॉब्लम, जो भी डिफिकल्टी है, उसके लिए हम आपके साथ में बिल्कुल एग्जाम के एक दिन पहले तक आपके साथ में ऑनलाइन बने रहेंगे, आप साथ देते चलिए, ठीक। यहाँ पर हम रुक जाते। अस्सलाम वालेकुम।